Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So today we are again with our session. I think you all are enjoying with the concept of marriage. We will discuss later on all the issues related with concept Prakruti. Now today's session is about Rutucharya and Dinacharya, daily regimen and seasonal regimen. So as you all know that कि जैसे आयुर्वेद के हिसाब से देर आर 6 सीजन्स, ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर वसंत हेमंत. Ayurveda divided these 6 ritus into Uttarayana and Dakshinayana. So Dakshinayana and Uttarayana या विसर्ग काल और आदान काल. विसर्ग काल in which our body or mental strength is very much in high position. So there are 3 ritus which are having a good strength, and there are 3 ritus which are having a low strength, low immunity according to Ayurveda. So Adan Kal and Visarga Kal. So we are just dealing with the daily routine, दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, and the seasonal regimen. Both concepts we are including in this session. सभी आप, you all know that daily routine में सबसे पहले आता है ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठे and all things. Okay, so we are going with according to our प्रकृति. किस प्रकार से हमें प्रकृति के हिसाब से भी ये देखना है. So I'm just sharing the screen. Lifestyle according to प्रकृति. So सभी को पता है कि सबसे पहले तो important है wake up early in the morning, but it's not possible for every प्रकृति. Okay, just we have discussed or we have known about the characters of Prakriti. Like Vata is having a Khandit Nidra. He couldn't sleep long, so he may sleep late. मतलब मॉर्निंग में वो ज्यादा सो सकता है या उसको नींद आ सकती है. तो हमें सबके लिए वात पित्त कफा के लिए ब्राह्मी मुहूर्त उत्तिष्ठ ऐसा नहीं कहा जा सकता. फॉर एवरीवन इट्स नॉट पॉसिबल. आई थिंक अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल, जॉब पैटर्न, बहुत सारी बातें इसमें हो सकती है. बट एज पॉसिबल ब्राह्मी मुहूर्त उत्तिष्ठ is required because this is really a good time for pranayam, for exercising, मतलब स्टडी के लिए, सभी के लिए ब्राह्मी. और आयुर्वेद का ये है कि लवकर निजे लवकर उठे, मतलब जल्दी सोना है और जल्दी उठना है. इट्स रियली हेल्थ बेनिफिशियल. आगे भी हम रसायन एजिंग जब देखेंगे तो इस प्रकार से किससे ये क्या इंपॉर्टेंस है इसका और किस प्रकार से हमें इसको लेना है. तो लाइक एज पर माय अकॉर्डेंस, एज पर माय experiences, I think Vata thoda late, he can wake up late after 7. Pitta maybe in the time schedule between 6 to 7, and Kapha before 6 p.m. So I know it's not possible because Kapha is also having his tendency of good sleepy, or Pitta may having a moderate sleep pattern. But I think as ki जैसे Vata dosha खंडित निद्रा लेता है तो उसको थोड़ा ज्यादा समय दिया तो चल सकता है. बट कफा इज ड्राउजी, स्लीपी, सो कफा पर्सन शुड वेक अप अर्ली. इट्स गुड फॉर देयर हेल्थ. सो उनको उठाना ही है और वो उठ जाए तो अच्छा होगा. देन डेली रूटीन, डेफिकेशन, मलमूत्र विसर्जन, मिक्सचरेशन. Vata is always having a constipation. When we are dealing with our patients और history जब आप लेंगे तो आपको ये ढूंढना ही है कि there is always having a constipation. If mix होता है Vata and Pitta is there, combination द्वंद्व प्रकृति अगर होती है तो sometimes he may suffer from constipation and sometimes he may have a loose stool. So both possibilities are there according to their diet pattern. Irregular habit in between, so mild laxatives हमें उनको देना होगा. Pitta is having just we know that he is having a good digestive fire, good stomach fire, and his eating habits are quite high. He is always craving for food, so digestion is also fast. And in Pitta Prakriti there is a production of lot of stool and urine. So Pitta Prakriti person is having a habitual habit of 1 to 2-3 times for defecations, or their stool is always having a loose pattern. So पित्त प्रकृति में एक से ज्यादा मल प्रवृत्ति हो सकती है. They can go
फॉर 1 to 3 टाइम्स, कभी कभी एक सवेरे और आफ्टरनून या इवनिंग में जाने की भी आदत होती है. एक्चुअली दिस इज आई थिंक हैबिचुअल, बट पित्ता पीपल ऑलवेज हैविंग दिस टाइप ऑफ हैबिट. Kapha is always having a regular defecation, formed stool. Kapha people never suffer from constipation as they are having a snigdhata, smoothness in their body. So this smoothness helps in digestion and also the propagation of excretion of stool or urine. So Vata Pitta sometimes constipation or eats spicy loose. उनको दोनों भी हो सकता है, स्पाइसी खाया तो लूज मोशंस होंगे और अगर ड्राई चीजें खाई तो कॉन्स्टिपेशन. वाता कफा, उनमें देखिए कफा इज देयर एंड वाता इज देयर. कफा में रेगुलर और अच्छा मतलब स्टूल फॉर्मेशन इज गुड, like Ayurveda says banana, right? But not a banana ki jaise. But if vata is there, it will take time for defecation. And if pitta and kapha is there, stool may be loose or formed. So both chances are there. So this is the first concept, Brahme Murte Uttishte. Then Mukhamarjan. Ayurveda suggest what to use. अभी तो हम कोलगेट का जमाना है और काफी सारे प्रोडक्ट्स हम टीवी पर देख के थक चुके हैं कि ऐसे दांत और वैसे दांत. But I think as per Ayurveda, bitter, astringent and pungent taste are good for our teeth. For Mukhamarjan, मतलब जो ब्रशिंग हम करते हैं टीथ उनके लिए. तो आज भी कई मतलब मैंने जैसे पढ़ा तो आज भी कई जगह पे ये मतलब इस प्रकार को फॉलो किया जाता है कि they use बबूल और खदीर स्टिक फॉर दंत मार्जन. एंड रियली इट्स हैविंग अ गुड इफेक्ट, क्योंकि ये रस हमको चाहिए. हम स्वीट कोलगेट मतलब पसंद करते हैं, ज्यादातर घरों में जो स्वीट पेस्ट होता है उसको यूज किया जाता है, बट एक्चुअली वी नीड तिक्ता कटु कषाय रस. सो बीटर, प्यूंजेंट एंड एस्ट्रिजेंट. फॉर वाता बबूल एंड मधुक, जस्टमत एंड बबूल, बबूल बाबुल ऐसे बोला जाता है मराठी में. सो दीज स्टिक्स आर रियली यूजफुल फॉर वाता प्रकृति. पित्ता कैन यूज अर्जुन एंड निम्बा. कफा करंज एंड कन्हेर. सो इसके बाद टंग हमें क्लीन करनी होती है. जिह्वा निर्लेखन, क्लीनिंग ऑफ टंग. देयर आर वैरायटी ऑफ क्लीनर्स आर अवेलेबल मेड अप ऑफ ताम्र, मतलब कॉपर से बने हैं, प्लास्टिक से है, मेटल से बने हैं, बट वाता कैन प्रीफर ताम्र. पित्ता चांदी का भी आता है. पित्ता चांदी या सिल्वर इज बेस्ट फॉर पित्त दोषा, इट reduces पित्ता. सो चांदी इज बेस्ट फॉर पित्ता. फॉर कफा ताम्रा इज गुड. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. सो जिह्वा निर्लेखन या टंग क्लीनिंग के लिए हमें ये यूज कर सकते हैं हम. इसके बाद गंडूश या गार्गलिंग, रियली इट्स यूजफुल और इट शुड बी एडेड इन आवर डेली रूटीन. गंडूश आप गर्म पानी से कुल्ला करना, अभी तो ये ओल्ड फैशन लगता है, बट एक्चुअली ये कुल्ला जो करते हैं ना तो इससे व्यायाम भी होता है, एक्सरसाइज होती है हमारी पूरे माउथ कैविटी की, चिक्स की, और इससे हम बच सकते हैं आगे जो फेशियल पाल्सी या मतलब बेल्स पाल्सी वगैरह डिसीज होते हैं उनसे बचने के लिए ये एक बहुत अच्छा बताया है कुल्ला करना, गंडूश. और गार्गलिंग तो
कोल्ड या मतलब कोल्ड तो नहीं लेकिन हॉट वाटर या गुनगुने पानी से अगर हम ये करेंगे, इट्स रियली गुड फॉर त्रिदोषों के लिए, तीनों प्रकृति के लिए। सवेरे उठकर अगर गंडूश करते हो, जब ब्रश करते हो, जब टंग क्लीन करते हो, तो उसके साथ गंडूश भी अच्छा होता है। देन नस्या, नस्या इज pulling the oil into the nasal cavities. Actually anutel which is the best for tridosha. नस्य से वॉइस क्लियर होता है और नासा ही शीर्षोद्वार, मतलब नेजल कैविटीज आर कनेक्टेड with our brain. So if we put the oil drops on our nasal cavities, our nervous system may be strengthened and all the activities of brain get stimulated. हमारा मतलब बाल्डनेस, बालों के लिए हमारे पूरे जो ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट, सारे ऊर्ध्व जठरुगत अपर जो भी बॉडी पोर्शन है, इनके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है. सो नस्य and nursia is having a really good results in all the nervous disorders. पैरालिसिस या हाइपरटेंशन हो, बालों के लिए, केसों के लिए, हमारे जो ग्रोथ होती है उनके लिए नस्य रियली गुड. इसके साथ हम शिरोधारा, शिरोबस्ती करते हैं तो इट्स रियली गुड. पित्त के लिए भी आप अणुतेल या स्नेह नस्य का प्रयोग करें, इससे प्री मैच्योर ग्रेइंग जो होती है वो कम होने में मदद मिलती है. सो नस्य. देन गंडुश, जैसे कि वात प्रकृति के लिए आप तेल का यूज कर सकते हैं, तिल या कल्पोदक you can use. For pitta prakriti, kashai and wound healing, ropan kwat like triphala, आप हफ्ते में 2 बार you can use just a pinch या 1 spoon of triphala powder in hot water and use this water for gargling. तो इससे मतलब जो भी कभी कभी मुंह में छाले पड़ते हैं या टंग में भी थोड़ा अनक्लीन होता है वो भी निकल जाता है. कफ प्रकृति use कटु and kashai like क्षारंबु, मधु for this type of gandusha, and it's really reduces the extra saliva because kapha persons are having the over secretion of saliva and this ज्यादा मतलब saliva उनके माउथ में आता है, तो उसको कम करने के लिए this rasa is really useful. So vata pitta kapha, slow activity, moderate activity and vigorous activity. Cleansing with decoction of amlaki fruit also good. देन आप मसाज, जिससे भी आप मसाज करना चाहते हो मसाज कर सकते हो. आगे भी हम मसाज के बारे में बताएंगे. जैसे वात के लिए तिल तेल है, पित्त के लिए आप चंदन वाला लाक्षादी कर सकते हो, एंड फॉर कफा सरसप तेल आप यूज कर सकते हो. इतना होने के बाद प्राणायाम, ये हमारा डेली रूटीन स्टार्ट करने के लिए जो भी आयुर्वेद के हिसाब से हमें डेली योग का अभ्यास करना चाहिए. वी इंक्लूडेड द आसनास अकॉर्डिंग टू प्रकृति. सभी लोग सभी प्रकार के आसन कर सकते हैं, बट अगर हमें दोषों को नियंत्रित रखना है या अकॉर्डिंग टू प्रकृति, व्हाट टाइप ऑफ आसनास वी शुड प्रेफर, लाइक इन वाता आसनास, वज्रासन, ताड़ासन, धनुरासन, शवासन, पौनमुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन एंड योग निद्रा. सो these all are like vata balancing asanas. तो पश्चिमोत्तानासन, शवासन, ये सारे आसन करने से जो भी, क्योंकि वाता एक्चुअली तो मेन पोजीशन और मेन जो वाता का ये होता है स्थान होता है, इट इज इन लोअर एब्डोमिन. सो ये सारे जो आसन है तो लोअर एब्डोमिन में वाता का कंट्रोल करेंगे तो पूरे बॉडी के जो वाता दोष होता है उस पर कंट्रोल आएगा. सो इस प्रकार के आसन. प्राणायाम, अनुलोम विलोम इज रियली गुड फॉर वाता दोषा बिकॉज वाता इज चंचल, इट इज having a rajagun in it, so it controls the chanchalata, activeness, overactiveness of vata dosha. For pitta, bhujangasan, gomukhasan, trikonasana, ardha chakrasan, uttan padasan and shavasana, because pitta is having somehow ushna or hotness, so और उसकी जो एक प्रकार की जो तीव्रता होती है, ज्यादा ओवर रिएक्शन, एंगर, पजेशन होता है, उसको कम करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार के आसन का प्रयोग करें. प्राणायाम में शीतली, शीतकारी एंड चंद्रभेदन प्राणायाम इज गुड फॉर पित्त दोष और पित्त प्रकृति. कफा, कफा सी, कफ के लिए एक्सरसाइज जो भी करेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा दे शुड इंक्लूड द मूवमेंट्स, जो भी ज्यादा हिला डेले वाली जो भी मूवमेंट्स होती है उसको ज्यादा करना है. वात लाइट एक्सरसाइजेस बिकॉज वाता इज हैविंग ऑलरेडी चलगुना, so he can prefer just light exercising. Pitta can do moderate, and but kapha, for kapha we have to suggest them a variety of exercises in which their whole body का उसमें मतलब whole body को व्यायाम हो, एक्सरसाइज हो, इस प्रकार के आसन उसमें हमें देना है. जैसे कि सूर्य नमस्कार है जो बेस्ट है कफ को कम करने के लिए और उसमें एक्टिवनेस लाने के लिए. धनुरासन,
भुजंगासन, वज्रासन, सेतु बंधासन एंड उत्तान पादासन। प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति या शुद्धि प्रक्रिया अगर करते हैं कफ प्रकृति, सो इट्स रियली गुड फॉर देम। आर यू गेटिंग? इज इट any doubt or is it okay? Yes, ma'am. या आफ्टरवर्ड सी ब्रह्म उत्तिष्ठ सभी हो गया, तो इसके बाद मतलब व्यायाम करने के बाद स्नान। तो स्नान के लिए क्या यूज करना है? एक्चुअली आयुर्वेदा सजेस्ट कि अलग अलग ऋतु में अलग अलग जल को उन्होंने बताया है, बट मेनी पीपल इन ग्रीष्म ऋतु में यूज कोल्ड वाटर, बट एक्चुअली हर एक प्रकृति के हिसाब से अलग अलग पानी का यूज करना है। लाइक वाता स्नान बाय उष्णोदक। यस यस बताइए रितिका। यस मैम, एक्चुअली माय क्वेश्चन इज कि ये जो हमें प्राणायाम वगैरह जो हमें योग करवाना है अकॉर्डिंग you are not audible clearly, just sound low. Is it audible, ma'am? Yeah, now okay. Yes, yes. मैम, माय क्वेश्चन इज कि जैसे हम योग करवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रकृति, क्या हम जैसे हमने विकृति में मतलब क्या करवाना है? मान लो अगर किसी पर्सन की प्रकृति है कफ पित्तज और वात विटेटेड है, तो हम उसमें वात को कंट्रोल करने वाले जैसे वज्रासन ताड़ासन करवाएंगे या फिर उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग? पहले तो वात बढ़ा है, तो किस कारणों से बढ़ा है? तो यहाँ पे निश्चित रूप से आहार विहार में कुछ बदलाव है, या वात का चल गुण बढ़ा है, वृक्ष गुण बढ़ा है, तो वात को कंट्रोल करने का पहले प्रयास कीजिए, तो वो कंट्रोल हो गया। जैसे प्राणायाम है, लाइट एक्सरसाइज है, एक बार आप मतलब जो कंट्रोल वात का या डिसीज अगर थोड़ा कम होने लगता है, तो फिर वी कैन गो विद आवर प्रकृति। ओके, तो पहले तो मुझे लगता है कि वात बड़ा है, तो लेकिन अभी वात बड़ा है तो मतलब व्याधि कौन सा है, इसके हिसाब से भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस व्यायाम प्रकार से भी ज्यादा वात बढ़ सकता है, तो उसको लाइट ही देना है, क्योंकि वायु बढ़ता है। कफ पित्त के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वायु को ज्यादा एक्सरसाइज करना, अति जागरण, अति चलन, अति प्रकार की कोई भी क्रिया वायु में वर्ज बताएंगे, तो इसको हमें नहीं उनको सजेस्ट करना है ज्यादा, तो लाइट ही आप करो। मुझे लगता है वात में अगर करना हो तो प्राणायाम इज बेस्ट, मतलब आसन से भी ज्यादा रुग्ण अगर पेशेंट है तो प्राणायाम सजेस्ट करो, बैठे आसन सजेस्ट करो, ज्यादा उसको एक्सर्शन मत होने दो, क्योंकि फिर से धातु क्षय हो सकता है। ओके, आर यू गेटिंग? यस मैम, बट मैम अगर पेशेंट जैसे मेदो वृद्धि का है, उसमें अग्नि भी प्रदीप्त रहती है और पेशेंट की, और जब ज्यादा मेद वृद्धि मतलब आवृत भी हो जाती है बात उसमें, और उसको रुक्षता आती है पूरे शरीर में, एंड बाल झड़ने जैसे हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में, तो हम उसको हम तो मॉडर्न में तो कहते हैं कि उनको हैवी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना वेट रिड्यूस करो, ये सब करो, तो हमें इसमें क्या करना है आयुर्वेद में? तो मुझे तो लगता है कि अगर वात भी है कफा भी है, वात इज देयर, इफ कफ वाता है, वात कफ व्हाटएवर वाता इज देयर ना, सेकंड हो या फर्स्ट हो, तो वाता है तो ज्यादा हेवी में नहीं जाना है। देखिए क्योंकि कफा की प्रकृति तो ऐसी है कि एकदम से आप वेट रिड्यूस नहीं कर पाते हो, तो धीरे धीरे जो भी प्रकृति हो, तो वेट लॉस एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे ही करना है। और अगर अनुबंधी दोष अगर वात होता है, तो उसमें हमें मतलब प्राणायाम के साथ ही करो, मतलब ज्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं सजेस्ट करना है मेरे हिसाब से। तो मुझे तो लगता है कि एकदम से वेट लॉस बोलते हैं, वेट कम करो, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल पर्सन्स, और स्पेसिफिकली कफ प्रकृति पर्सन्स। सो वी शुड गो विथ डाइट ऑल्सो, हमें डाइट में भी थोड़ा ये करना है, तो धीरे धीरे करो जो भी करना है, एकदम से मत करो, वट एवर हाइपोथायराइडिज्म और हाइपो वट एवर द सिचुएशन इज। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तो मतलब मॉडर्न को या मतलब एकदम से वेट लॉस बहुत बोलते हैं बहुत बार, अभी तो ऐसे हो गया कि 2-4 किलो भी अगर वजन ज्यादा होता है तो लाइक जॉइंट पेन के लिए भी वेट ज्यादा है, उतना तो होगा ही ना, हर एक कोई मेंटेन नहीं रह सकता। तो ये तो ज्यादा थोड़ा फैड हो गया है वेट लॉस का, या वेट के बारे में ज्यादा मतलब ये होता है कि आजकल कहीं कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है तो उसका कारण वेट पे ही लगा देते हैं, लेकिन प्रकृति के हिसाब से कफ प्रकृति का वजन थोड़ा होगा ही ना, तो हमें क्यों मतलब उनको ये करना है हर बार? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, प्रॉब्लम होती है वेट से तो उसको हम कम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करना है ना, एकदम से नहीं कर सकते, करना भी नहीं एकदम से। ओके, नेक्स्ट, तो स्नान के लिए वात प्रकृति शुड यूज उष्णोदका इन शीतकाला, सुखोष्ण जल इन ग्रीष्म जल।
सो मतलब ग्रीष्म भी है तो एकदम ठंडा पानी नहीं यूज करना है वात प्रकृति को. कफा उष्णोदक इन शीत एंड सुखोष्ण जल also पित्ता सुखोष्ण, तो पित्त को भी सुखोष्ण जल ही यूज करना है. लेकिन पित्त प्रकृति always have take bath at least 2 times a day because they are having a over secretion, they are having a tendency of over secretion of sweat. स्वेटिंग ज्यादा होती है, मतलब स्मेल आती है, तो इसीलिए उनको सजेस्ट करना है कि 2 टाइम्स बाद. देन ब्रेकफास्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं. लाइक वाता शुड टेक न्यूट्रिशियस, पित्ता मधुर पित्ता रिफ्रेशिंग, कफा लाइट. क्लोथ्स कैसे पहने, ये तो मतलब मैंने इसमें थोड़ा एडिशन दिया है. क्लोथ्स लाइक कफा पर्सन अगर प्लेन क्लॉथ पहनते हैं तो उनका जो वेट थोड़ा ज्यादा होता है वो थोड़ा छुपने में मदद होती है एंड इट लुक्स गुड ऑन कफा. डार्क कलर बट सिंपल. पित्ता में स्वेटिंग ज्यादा होती है तो दे शुड प्रीफर लाइट वेट कूल कलर्स, पेस्टल कलर्स. इस पे आगे भी हम कलर्स पे बहुत ज्यादा अभी और एक इसमें हम बताएंगे, और एक सेशन में हम कलर्स और प्रकृति के हिसाब से पढ़ेंगे कि कैसे कलर हमारे प्रकृति को, या वैसे तो कलर हमारी जिंदगी को, हमारे मूड को प्रभावित करते ही है. वी गो इन होटल्स फॉर ऑल सच थिंग्स लाइक फ्रेशनेस, कलर, डेकोरेशन, ऑल सच इश्यूज आर देयर एंड इट्स रियली हमारे माइंड के लिए इट्स रियली कूलिंग, रिफ्रेशिंग फॉर चेंज. देन ऑर्नामेंट्स, ये भी मतलब मैंने इसमें एडिट किया है कि किस प्रकार से ऑर्नामेंट्स पहनने चाहिए. सी ये भी हमने इंक्लूड किया है कि किस प्रकार से जेम्स एंड ज्वेलरीज, कौन से व्यक्ति कौन से जेम्स एंड ज्वेलरीज पहने सो ज्यादा यूजफुल होगा. तो जैसे कि वाता इफ सुवर्ण इज रियली गुड बिकॉज सोना इज सोना, सोना तो सोना ही है, तो सोने की तुलना तो किसी से हो नहीं सकती. सो रियली इट्स गुड फॉर वाता. It's moisture your skin on regular basis, oils to hairs, wear scarf. तो ड्राइनेस वगैरह जो जर्नी में होती है वो रूखापन आता है बाहर की हवा से, वो कम हो जाएगा. पित्ता सिंपल, सिल्वर, कूल, अवॉइड हेवी ज्वेलरी, अवॉइड मच यूज ऑफ मेकअप्स, कॉस्मेटिक्स. पित्ता को बहुत ज्यादा पसंद होता है कि रहन सहन था, लेकिन उनको कम यूज करना है बिकॉज दे मे हैव एलर्जिक टेंडेंसी बिकॉज देयर स्किन इज डेलिकेट. सो दे शुड wear or they should select, very choosy होना है उनको ये सारा सिलेक्शन करते समय. Moisture, cover hairs with scarf, use specs to avoid from sun rays से अवॉइड करने की, अभी तो इस ऋतु में तो ज्यादा जरूरत है. Then कफा can use any type of jewelry, can use cosmetics regularly if necessary, straightening and all things because they are having the curling hairs, so they can use it. Lunch वाता के लिए nourishing, पित्ता on time. पित्त को डोंट मिस द टाइम फॉर पित्त प्रकृति, उनको मिस नहीं करना है. मिसेलनियस में मैंने जस्ट ऐड किया है कि वाता शुड अवॉइड हील्स बिकॉज हमेशा गड़बड़ी रहती है, सो दे कैन स्लिप ऑफ. तो इस प्रकार से उनको थोड़ा अपने लाइफस्टाइल में ये करना है, मोल्ड अप. पित्ता अवॉइड मच हेयर एक्सेसरीज बिकॉज देयर हेयर आर ऑलरेडी थिन एंड ब्रिटल एंड दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ ग्रेइंग ऑफ हेयर, अर्ली एजिंग सिम्टम्स, so they avoid such type of accessories which breaks up the hairs. Then kapha can use plenty. Work life में भी ज्यादा मैं डिटेल में लूंगी बाद में. वाता मेंटेन रेगुलरली इन वर्क, गॉसिप्स से बचना है, बी कूल, रीड रिलीजियस स्टोरीज, प्राणायाम बिकॉज वाता में थोड़ी एनर्जी ज्यादा होती है, रजोगुण ज्यादा होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा रिलीजियस, बिकॉज दे आर नास्तिक, वाता पीपल आर नास्तिक, दे डोंट गो विथ धर्म एंड गॉड एंड दे आर नॉट गुड फॉलोअर ऑफ एनीवन, किसी को नहीं मानने वाले होते, तो थोड़ा उनको हमें ये करना है. देन पित्ता अवॉइड ईगरनेस, बी कूल, रीड कॉमिक्स क्योंकि ज्यादा एंगर, पैशन, हमेशा मतलब एक होड़ होती है इनमें आगे जाने की, या हमेशा इस प्रकार से जीनियस होते बहुत ज्यादा, हर वक्त कुछ ना कुछ उनको ये होता है एम्बिशियस, तो इसको थोड़ा कम करना है उनको. क्रोध को भी मतलब प्रकोप ना हो, दोष वाइटेड ना हो. कफा डू मूवेबल वर्क, डोंट बी लेजी, रीड साइंटिफिक ब्रेनस्टॉर्मिंग गेम्स और स्टोरीज. इवनिंग टाइम कैसे बिताना है वात पित्त कफ में. सो फॉर इवनिंग टाइम वाता कैन टेक रेस्ट एज दे नीड रेस्ट बिकॉज वाता में ऑलरेडी दे वेस्ट एनर्जी इन न्यूमरस थिंग्स. बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ करने में उनकी एनर्जी जाती ही है, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, कुछ ना कुछ सोचते रहना, सो दे नीड रेस्ट. मॉडरेट वर्क, प्रेयर. पित्ता लिटिल रेस्ट, बाथिंग. कफा कैन डू वॉकिंग, आउटिंग. Dinner, vata can take regular, pitta moderate and kapha take light.
सेक्सुअल जो भी होता है वो एज पर योर कैपेसिटी, 2 times a week फॉर एवरी प्रकृति, सीजन वाइज भी इसमें हमें चेंज करना है। स्लीप वाता, स्लीप के पहले अच्छी स्लीप आने के लिए दे कैन टेक ऑयलिंग मसाज, कर्ण पूरन, कर्ण में मतलब कान में भी कूलिंग ऑफ ऑयल इनटू ईयर कैविटीज, इट्स रियली सजेस्टेड इन आयुर्वेदा। अभी तो ये सारा कम हो गया है, बट अर्लियर ड्यूरिंग मतलब जो भी लास्ट डिकेड्स थे, before 25 years, it's has been using in various regions. So avoid cooling of room much, sound sleep के लिए जरूरी है। पित्ता कैन यूज कूलिंग, फ्रेगनेंस, ऑयलिंग also, ऑयलिंग तो मतलब पादाभ्यंग ये सभी के लिए अच्छा है स्लीप के लिए। कफा मॉडरेट कूल इनको यूज करना है। सो सभी मतलब ये तो हो गया सभी हमारा मतलब डेली रूटीन कैसे हो, इसके साथ साथ हमारे जो सेंसेस है उनको ठीक रखने के लिए चक्षुष मतलब द ड्रग्स यूजफुल फॉर आवर आईज, इसमें यहाँ पे मैंने कुछ लिया है जैसे कि आम्लकी, नींबू कुमारी। सो यू कैन यूज दिस कोरफड, कुमारी, एलोवेरा और आंवला इन एनी फॉर्म, मतलब कोई भी इसका फॉर्म आप ले सकते हो जो कि आंखों के लिए अच्छा होता है। यू कैन यूज च्यवनप्राश, you can eat any candy, avla candy, you can use कोरफड juice. So these are for really good for eyesight, चक्षुष आंखों के लिए अच्छा बताया है। तो बिबितक, द्राक्षा, लोद्र, लवंग फॉर पित्त कफा, जीरा एंड कर्पूर एंड कफा शामक होते हैं। जीवंती, काकमाची तीनों दोषों के लिए दे आर बेटर। कटफल वात एंड कफ शामक होते हैं। रक्तचंदन, लता कस्तूरी पित्त शामक होते हैं। एंड शतावरी, यष्टिमधु, these are for vata pitta shamak. So these all drugs should be included in any way, in any form for your better eyesight. तो इससे आपकी आंखें अच्छी रहेगी, सुंदर रहेगी, एजिंग के हिसाब से मतलब चश्मा लगना या बाकी जो भी होता है प्रॉब्लम वो कम होने में बिल्कुल मदद मिल सकती हो। तो इस प्रकार से दिस इज आवर डेली रेजिमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, दिनचर्या। ओके, इसमें कुछ आपको डाउट है? इज इट ओके? सो नेक्स्ट ऋतुचर्या, सीजनल रेजिम। यस यस यस, you are unmuted. No voice, no voice. No voice. चौव्य, सो चौव्य यानी मतलब चबाकर खाने वाले, क्या बोलेंगे हम उसको, लाइक वी मतलब जब मीट वगैरह खाते हैं ना तो उसको ऐसे चबाकर खाते हैं, तो इस प्रकार से खाना। मैम हाँ बताइए। अशोक जी दिनचर्या के बारे में जो चर्या है वो पूछ रहे हैं, हाँ मीन्स की डेली रूटीन। हाँ हाँ, तो डेली रूटीन मतलब यही है ना, अभी जो मैंने बताया ना वही है ना। और उसमें कुछ क्या क्या बता रहे हैं उनको? नहीं, उनको हिंदी का जो संस्कृत वर्ड है ना चर्या, उसका मीनिंग वो मैम पूछ रहे इसके हैं। पीछे वाला जो है ना वो बताइए ना। अरे इसके बाद वाला अभी डाला ना आपने? नहीं नहीं, आगे पीछे नहीं मैम, आगे आगे जाइए ना, अभी आगे जा रहे थे ना आप। हाँ 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 ये ये हाँ हाँ और उसके बाद चक्षुष यानी यूजफुल फॉर आईज, या हाँ चक्षुष या these all can be used of मतलब these are all good for eyes, हमारे आंखों के लिए, आई साइट के लिए अच्छा होता है ये सारा। तो आप किसी भी मात्रा में किसी भी रूप में आप यूज कर सकते हो इस इन ड्रग्स का। जी मैम, ओके। तो इस मैम प्रकार से इसका स्वरस भी यूज कर सकते हैं ना?
हाँ तो हम इसमें हम बहुत सारी क्रिया है, वो तो बहुत डिटेल टॉपिक है। जैसे तर्पण है, पुटपाक है आयुर्वेद के हिसाब से, अश्वतन है, इसका रस आंखों में डालना। फिर जैसे हम जानू बस्ती वगैरह करते हैं ना, तो इस प्रकार से अंजन वगैरह या इस प्रकार से मतलब नेत्र बस्ती भी बताई गई है, पुटपाक भी है। तो बहुत सारी क्रियाएं इसमें होती है। तो इसके लिए आप अगर आप खाने में भी अगर इसका इस्तेमाल करोगे, जैसे आंवला का है, कोरफड का है, इस प्रकार से अगर इस्तेमाल करते हो तो वो अच्छा होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है। क्योंकि हमेशा मतलब बाकी सारा तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन वो ऑलवेज आंखों को हम थोड़ा ये कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा स्पेसिफिक इस पे ऐड किया है। इज इट ओके नाउ? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, so next is Rutucharya. Charya means regimen. So Dinacharya, daily regimen, and Rutucharya is seasonal regimen. Is it okay यस now? मैम। Is it okay? यस। Yes. Charya means regimen, daily regimen or seasonal regimen. So according to Ayurveda, just now I have told that there are two rutus or two kalas, Adan Kal and Visarga Kal. Shishir, which is having a good strength, Vasant यानी अभी जो चल रहा है स्प्रिंग, मध्यम मीडियम स्ट्रेंथ, एंड ग्रीष्म it is having a summer which is having a low हीन strength, low strength. विसर्ग काल यानी हेमंत ऋतु, ठंडी के दिनों में जो विंटर. So in winter we are having a good strength, उत्तम बला. In Sharad also, autumn, madhyam bala, and in Varsha Ritu our strength is again reduced, like in rainy season. So this is okay. इस प्रकार से there are 6 seasons. 3 are good, like we are having a great energy, great strength in these 3 seasons, and 3 are somehow weak for our digestion, for our strength, mental या physical strength के लिए ये थोड़े weak होते हैं. Now see, first ऋतु मैंने मतलब दोषों के हिसाब, according to dosha I have taken these seasons. Like in Grishma, summer, the sun rays become powerful, see, and appear to be destructive. Kapha slowly decreases, and in turn Vata start increasing. Grishma, Varsha, Sharad. These are the 3 seasons in which Vata get vitiated and then it pacifies. ग्रीष्म, वर्षा और शरद. तो मतलब जैसे कि अप्रैल मई से फिर जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, जो 6 महीने होते हैं, these 6 are for Vata dosha. Vata increases, then it gets vitiated, and then automatically it pacifies. So during these seasons we have to take care about Vata dosha, and we have to take our regimen according to Vata dosha. As Vata is having accumulation, Vata is in the position of increasing. So अभी जो वात के जो बढ़ाने वाले होते हैं, like pungent, sore, heavy physical exercises, exposures to sunlight. See, ऐसा नहीं है कि वातों को हॉटनेस अच्छा है तो ज्यादा हॉटनेस सीजन भी चलेगा, नहीं है, क्योंकि दिस हॉट सीजन also increases dryness, वृक्ष गुण. So वाता starts accumulate in ग्रीष्म also. So ये मतलब समर में वाता स्टार्ट होता है क्योंकि हॉटनेस से ड्राइनेस होती है. So wrong thing which people do during this period is cold water ज्यादा यूज करते हैं वगैरह, तो इससे ये वाता accumulation हो सकती है. It is also in this season there is also a lowering of digestive agni, which in turn causes digestion related problem. So take the foods which are having a sweet, light, fatty, cold and liquid, mixed with cold water and sugar after taking bath. In cold weather, it's strictly avoided during this period. मतलब जो भी wine वगैरह होती है वो avoid करना है. During summer, boiled rice, which is white in color, like full moon, should eaten along with मूंग दाल खिचड़ी, green vegetables. इसमें आप use कर सकते हो. So mineral rich food that are easy to digest, because digestion भी low हो सकता है. Various soups, nuts, dry fruits and other liquid items must be eaten which are full of having the minerals, but in minor quantity. मत ज्यादा मतलब ज्यादा इसको नहीं लेना है इस प्रकार से. So ग्रीष्म ऋतु और समर सीजन में क्या करना है, इन शॉर्ट में बता दूंगी. पित्ता, stay away from heat, sun rays,
white garlic and masala cheese. Pitta diseases may occur. Vata, Vata इसमें accumulate होता है, so घी, oil, milk sufficient, sour fruits, pickles and day sleep. Vata के लिए इस ऋतु में, this is the only season when Vata can take rest during the daytime also. So day sleep is advisable in this season, only this season when Vata can take rest. Kapha, लघु आहार like bhakri and rice. So इस प्रकार से ग्रीष्म ऋतुचर्या. Is it okay? ग्रीष्म यानी summer season. So in short, in this image, all in one image किस प्रकार से recommendations है diet के और regimen के. तो in short कि जो हम cold पसंद करते हैं, cold खाते हैं, तो उसको हमें कम करना है. We should have a warm और अग्नि के हिसाब से, थोड़ा जाट ठंडे के हिसाब से. ओके, अभी जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में उष्ण एंड वृक्ष गुण डोमिनेंसी है. इट इज एन पीक एंड सो एटमॉस्फेयर ऑफ वाता संचय इसमें होता है. इस प्रकार से अभी मैंने जो बताया इसको एक बार फिर से, अवॉइड कफा प्रकृति शुड अवॉइड डे स्लीप. नाउ नेक्स्ट वन इज रेनी सीजन, वर्षा. What happened? Varsha weakened power of digestion. Vata प्रकोप अवस्था, Vata dosha get vitiated. और पित्ता also start accumulating. अभी इस ऋतु में मतलब वात का भी, Vata is in vitiation state and pitta also start accumulation. So हमें वात, we should go with Vata and Pitta both in this season, rainy season. Vata prakriti should more sour, salty, uncuteous diet advisable for person as it is beneficial over. Rakshasa, इसमें बस्ती जो कि enema, it is really good for Vata dosha and basti is recommended in this rainy season. इस वर्षा ऋतु में ही हमें बस्ती लेना है to improve the Vata dosha, to improve the Agni. इसमें पंचकोल, फिर हिंगवाष्टक चूर्ण, दशमूल, इस टाइप के जो भी डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट होते हैं, we should take this digestive stimulant in this season. पित्त प्रकृति, द्रव आम्ल property of pitta more prominent, so more advisable to mix like मधुर, इसमें honey हमें यूज करना है ज्यादा. Less quantity with food and beverages, should not take more of sour and salty. Pitta sanchaya is there, accumulation of pitta dosha in varsha. Kapha prakriti more capable to have madhvika or any type of arishta, asav, any type of liquor for their agni deepanaka. So kapha can take in this season because kapha is in normal stage in this season, varsha rutu. Vata and pitta are having vitiation. So पित्ता थोड़ा अक्यूमुलेट होता है, लेकिन वाता डोमिनेंसी इसमें रहती है. रेनी सीजन में वाता डोमिनेंसी. सो ऑफन वी सी दैट इन दिस सीजन पीपल सफर फ्रॉम जॉइंट पेन एंड वाता डिसऑर्डर्स. जैसे हम बोलते कि बादल आ गए तो मतलब जॉइंट का पेन बढ़ जाता है. तो ड्यू टू दिस इज अ स्टेज ऑफ वाता प्रकोप, वाता वाइटिएशन. सो पीपल मे हैव सच टाइप ऑफ सिम्टम्स और दे मे सफर फ्रॉम such type of problems. So this is Varsha Ritucharya in which we have to take care of Vata and Pitta. Is it okay? Now the third one is Sharad, full autumn, mid-September to November. During this season, the sun turns out to be splendid. The sky stays clear and sometimes with white cloud, and the earth is smeared with wet mud. The prevalent rasa is Lavan and transculent Mahabhuta are up and Agni. Now, see, Grishma, Varsha and Sharad means summer, rainy and autumn. Now, Vata automatically gets pacification. Vata, अभी Vata शमन हो गया है. Now, Vata का अभी Vata के बारे में मतलब हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है because it is in appeasement stage. But here पित्ता is in vitiation. In this season पित्त, जैसे कि हम बोलते हैं ना अक्टूबर हीट बोलते हैं. So October heat is due to this pitta kal. It is a pitta hotness of pitta dosha. So daily routine में
हमें food which is having madhur, tikta taste and lagu and cold properties should be eaten. Foods having the properties to mollify vitiated pitta dosha, इसमें wheat, green gram, sugar, sweet, nectar, पटोला वगैरह, तिक्त, प्यूंजेंट, एस्ट्रिजेंट रस जिसमें होता है वो हमें लेना है to correct the pitta dosha, or it is necessary for vitiated pitta dosha. Hot, bitter, sweet, astringent foods are to be stayed away. The food products, meat of aquatic creatures, curds and so on should be excluded from the diet. दही वगैरह इसमें नहीं खाना है. Lifestyle should be habit of eating food just when there is a feeling of hunger is suggested. मतलब जब भूख लगती है तभी इसमें खाना खाना है. Water sanitized by the beams of sun in daytime and the beams of moon during the evening. तो इस प्रकार से इस सीजन की एक खासियत है कि दिन में सनरेज से जो पानी गर्म होता है, मतलब नेचुरल वाटर, उसको हमें यूज करना है फॉर बाथिंग एंड ऑल थिंग्स. और रात्रि के जो मून होता है उससे जो पानी कूल होता है या उससे जो पानी गर्म होता है उसको हमें यूज करना है बाथिंग के. सो इट इज सजेस्टेड, इट्स लाइक इसे क्या बोलते हैं, हंसोदक बोलते हैं. So it is suggested to wear flower garlands and to apply the paste of chandan because heat is there, उष्णता is there. तो इस सीजन में हमें फूलों का, फ्रेगनेंस का बहुत भरपूर मात्रा में हमें यूज कर सकते हैं. It is said that moonbeams in the initial 3 hours of night is favorable well-being restorative method. For example, in this season, virechana, purgation, cleansing of body. जैसे rainy season is preferred for basti, enema, because in that season vata is in vitiated state. For pitta dosha, this is the best season for pitta dosha for virechan, purgation, cleansing through लूज मोशंस. मतलब इसमें आयुर्वेदिक जो दवा देते हैं इससे लूज मोशंस होते हैं एंड पित्ता दोष जो होता है वो बाहर चला जाता है. इसमें रक्तमोक्षण भी प्रेफरेबल होता है, ब्लड लेटिंग जिसे करते हैं. सो napping during the day, exposure to sunlight and excessive eating this during this season. So इस प्रकार से ग्रीष्म, वर्षा और शरद, is there any query regarding this 3 seasons? Are you getting Ashok sir? ग्रीष्म, वर्षा एंड शरद, ठीक है. मतलब समर, रेनी सीजन एंड ठंडी का जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है, ठंडी एकदम मतलब ज्यादा ठंडी नहीं. तो इसमें दोनों में क्या देखा है हमने, वाता पित्ता दोनों को हमें इसमें देखना है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, ठीक है. एंड फिर आगे के जो 3 सीजन्स होंगे, शिशिर, वसंत एंड ग्रीष्म, लाइक द स्प्रिंग सीजन एंड नेक्स्ट ऑटम सीजन. तो इसमें हमें कफ के बारे में सोचना है. तो आई थिंक आवर टाइम इज ओवर. इज इट ओके फॉर टुडे सेशन? एनी क्वेश्चन? मैम 12 नंबर की स्लाइड एक बार शो कीजिए ना. ये इसके आगे की मैम 12 नंबर. ये नहीं नहीं, इसके बाद ये हाँ हाँ, नहीं ये वर्षा. नहीं, ये पहले जो ये इससे पहले वाली. ये रेनी. हाँ हाँ, ओके, थैंक यू मैम. अच्छा, स्क्रीनशॉट. Yeah, ma'am. Okay, no problem. I will share most of the things with you all because really it's needed. It's really a vast subject. तो एक अभी तो आज मैंने ये खत्म करने का सोचा था, लेकिन ऐसे एकदम नहीं छोड़ सकते कि विदाउट एक्सप्लेनेशन आई कुडंट. सो आई थिंक अभी मतलब 3 सीजन हमने देखे, कल हम 3 बाकी की सीजन. एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रकृति. व्हाट आर द डोमिनेंस ऑफ डिसीजेस अकॉर्डिंग टू आवर प्रकृति. ओके. सो आज मैं रात शाम तक मैं एक दूसरा हमारा जो असाइनमेंट है वो भी मैं शेयर करूंगी विथ एमसीक्यूज टाइप में, जो भी हमने अभी बहुत सारा मटेरियल हो गया है. लाइक वी हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स ऑफ आहारा एंड ऑल. तो आज मैं एक सेकंड हमारा जो होगा वो मैं शेयर करूंगी असेसमेंट का, ठीक है. इज देयर एनी क्वेरी? मैम कल का रिकॉर्डिंग भेजेंगे आप? क्योंकि कल का मेरा भेजा है ना मैंने ऑलरेडी, कल का भेजा है ऑलरेडी. भेज दिया. अच्छा मैं देख लेती हूँ. हाँ भेज दिया. ओके, उसी दिन मैं तुरंत भेज देती हूँ, मतलब आप जी. देख सकते हो ना. सो हाँ, नहीं एक्चुअली मैं कल आउट ऑफ स्टेशन थी, शायद मैंने हाँ, देखा हो it's सकता okay, है. it's okay. I have thank shared you. already. Okay, Okay, so okay. I'm ending the session.